Hello everyone and welcome to my YouTube channel English Paradise, and today we are going to have explanation of part 2 of chapter number 1, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. In part 1 we were discussing about that what happened to Lencho's field, how his field was completely destroyed, and what was he expecting that of getting good harvest that year would be in a vain. उसकी फैमिली बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, लेंचो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग था, उसने अपने हार्ड वर्क से अच्छी क्रॉप अच्छी हार्वेस्ट को बिल्डअप किया था जो कि अब उसे नहीं मिलने वाली थी, एंड दे वुड नॉट बी गेटिंग वेरी प्रॉस्परस दैट ईयर. अब उनके साथ आगे क्या होता है, जो उनका फेथ है गॉड में कि वो बहुत अच्छा कुछ गॉड उनके लिए हेल्प करेंगे, गॉड उनको शायद उनको सरवाइव करने के लिए कुछ ऐसी हेल्प करेंगे. क्या उन्हें कुछ रिसीव होता है गॉड से, क्या उनका फेथ बना रहता है, वो गॉड से किस तरह की हेल्प मांगते हैं इस लेटर के थ्रू, दैट वी आर गोइंग टू हैव इन आवर पार्ट 2. सो लेट्स बिगिन. सो वी आर गोइंग टू बिगिन आवर पार्ट 2. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Now you know that Lencho had strong faith in God. And when he and his family got disappointed for not getting that harvest what they were expecting, Lencho told all his family people that don't not to worry about, and they would still have some hope, and that was from God. He was expecting that God would surely help him if nobody was there to help them. उसको बहुत उम्मीद थी गॉड से, और उसको पता था कि चाहे कोई और उनकी हेल्प करे या ना करे, लेकिन गॉड उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे. तो वो क्या करता है, वो अपनी फैमिली को एक कंसोल करता है, उनको वो समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि अभी भी हमारे पास में एक बहुत बड़ी होप है जो कि इस पूरे वर्ल्ड को, जो कि इस पूरी एग्जिस्टेंस को चलाते हैं, दैट इज़ गॉड. वो कहता है कि हमें गॉड हेल्प करेंगे, वी वुड रिसीव एन हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. Remember, no one dies of hunger. He gives some consolation to his family by saying that even after getting a loss, not to worry about it, because there is still some hope, that is help from God. And if God has given us birth, if God has made us a part of existence, then we would know we would not die of hunger. वो कहता है कि भगवान ने अगर हमें इस एग्जिस्टेंस का पार्ट बनाया है, हमें बर्थ दिया है, तो हमें वो भूखा भी नहीं रखेंगे, हम लोग बिल्कुल भी भूखे नहीं मरेंगे. वी विल नॉट डाई ऑफ हंगर. All through the night, Lencho thought only of his one hope. What was that one hope? The one hope was the help from God. Now he was only thinking of that one hope that he had, and that was the help from God. The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means in one's inner sense, what we think, what we feel, right? That is conscience. So God knows everything. You know that God has made us, God has created us, God has crafted us, and he knows very well what is there in our conscience. So Lencho was an ox of a man. Ox of a man, I have already told you the meaning of that phrase. Ox of a man means a hard working guy. Lencho was very hard working. He worked day and night to get a good harvest that year, but things did not go as per his expectations. Now, Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. So Lencho was a farmer, but that does not mean that he did not know to write. He knew very well how to write. He was a literate farmer. Okay? तो वो ऐसा नहीं था कि वो फार्मर था तो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था. वो लिटरेट था, उसे पढ़ना लिखना आता था. He could write. वो लिख सकता था. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Now what Lencho did the following Sunday?
एज ही वॉज थिंकिंग ऑफ टू गेट सम हेल्प फ्रॉम गॉड, व्हाट ही डिड, जैसा कि वो सोच रहा था कि वो भगवान से मदद मांगेगा, तो उसने क्या किया उस मदद के लिए, उसने अगले संडे एक लेटर लिखा गॉड को, और वो लेटर वो खुद जाएगा और जाकर जो पोस्ट ऑफिस है, जो पोस्ट मेल बॉक्स है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ वो खुद मेल करेगा। तो वो एक लेटर लिखने लगता है, जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है, अ लेटर टू गॉड, एंड दैट टाइटल इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू हैव नाउ। Lencho finally started writing a letter to God to receive some help so that he and his family could survive। तो वो एक लेटर लिखने लगता है क्योंकि उसको लास्ट जो उम्मीद थी, जो होप थी, वो सिर्फ भगवान से थी, जिसके अंदर उन्हें बहुत फेथ था। गॉड ही रोट, ही एड्रेस दैट लेटर टू गॉड, उसने वो लेटर किसके नाम से लिखा, गॉड के नाम से लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos। pesos is a currency, like we have rupees, right? So Indian rupees, so pesos is a currency that is usually used in Latin American countries like Mexico, Brazil, okay? So I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm, and he stuck, okay? So what he wrote in his letter, he asked God for 100 pesos, he asked some help in a form of some money। तो वो भगवान से कुछ पैसे मांगता है। पेसोज इज़ अ करेंसी, ओके, ऑफ लेटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक मैक्सिको, ओके। तो वो 100 पेसोज मांगता है। क्यों मांगता है वो 100 पेसोज? सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपनी फील्ड को वापस से बो सके, ताकि वो उस पूरे ईयर वो और उसकी फैमिली सरवाइव कर सके। बिकॉज आपको जैसा पता है, हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड कम्प्लीटली, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उसकी फील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो इन हिज लेटर ही आस्क्ड फॉर 100 pesos in a form of help. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. So finally, Lencho wrote a letter to God. He addressed this letter to God. He went to the nearby post office and placed a stamp on it. वो उस लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाता है। जैसे आपको पता है, लेटर को मेल करने के लिए उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाया जाता है। वो स्टैम्प लगाता है, और वहाँ जो मेल बॉक्स होता है, आपने रेड कलर के मेल बॉक्सेस देखे होंगे पोस्ट ऑफिस के आसपास या उसके अंदर, तो वो उस मेल बॉक्स के अंदर उस लेटर को पोस्ट कर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा इनडिफरेंट है कि एक इंसान के अंदर भगवान को लेकर इतना फेथ होता है कि वो ये उम्मीद कर लेता है कि शायद भगवान उसकी मॉनेटरी फॉर्म में भी हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फेथ को बताया जा रहा है। सो लेट्स सी फर्दर क्या होता है, क्या गॉड उसको वो 100 pesos सेंड करते हैं या नहीं करते हैं। लेट्स सी। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. So who received that letter? The postman. आपको पता है postman सारे मेल बॉक्स में से लेटर निकालते हैं, फिर अपने अपने जो एड्रेस होते हैं वहाँ उन पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एड्रेसेस पे वो उसको पोस्ट करने जाते हैं, मेल करने जाते हैं। तो पोस्टमैन को वो लेटर रिसीव होता है। व्हेन ही रिसीव दैट लेटर, ही टुक दैट लेटर टू द पोस्टमास्टर होते हैं जो पूरे एक पोस्ट ऑफिस को संभालते हैं। तो वो पोस्टमैन उस लेटर को रिसीव करता है और पोस्टमास्टर के पास उस लेटर को ले जाता है। पोस्टमास्टर जैसे ही उस लेटर को देखते हैं वो हंसने लगते हैं। एंड शोड हिम द लेटर। तो पोस्टमैन और पोस्टमास्टर दोनों ही उस लेटर को देखकर हंसने लगते हैं जब पोस्टमास्टर उस लेटर को देखते हैं। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। आज तक पोस्टमैन ने कभी इस तरह के एड्रेस पे किसी लेटर को पोस्ट नहीं किया था। आई थिंक शायद हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, रियलिस्टिक लाइफ में भी कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी ने सीधा गॉड को लेटर लिखा हो। बिकॉज नोबडी कैन राइट अ लेटर टू गॉड। येस, वी हैव some positive faith in God, we can feel that positive energy, but we know that God could not come and help us. God कभी डायरेक्टली आकर आपकी हेल्प तो नहीं कर सकते। He can only guide you a right path. केवल गॉड आपको एक सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। देखते हैं आगे क्या हुआ। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। आज तक पोस्टमैन ने कभी एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर
a fat amiable fellow. Amiable is a pleasant friendly person. ओके तो पोस्ट मास्टर का थोड़ा सा यहाँ कैरेक्टरिस्टिक बताया है, उनके ट्रेट्स बताए हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. कैरेक्टर स्केच या आप उसको पैन पिक्चर भी कहते हैं, इसको आप लिखते टाइम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये ट्रेट्स. ओके सो काइंडली अंडरलाइन दीज लाइन्स. द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. पोस्टमास्टर भी इस तरह के लेटर को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है. स्टार्टेड लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." First, postmaster began to laugh just to see the letter, but suddenly he realized the faith a man had in God. He respected that faith in God. पहले तो पोस्ट मास्टर काफ़ी हंसने लगते हैं, उन्हें काफ़ी मजाकिया लगती है, ये चीज़ ह्यूमरस लगती है, लेकिन सडनली उन्हें रियलाइज़ होता है कि उस आदमी का फेथ कितना स्ट्रांग होगा जिसने कि भगवान को लेटर लिखा. और वो विश करने लगते हैं कि काश उनके अंदर भी वो फेथ होता, काश उनके अंदर भी वो एक कॉन्फिडेंस होता गॉड को लेकर कि शायद वो भी गॉड से कभी हेल्प मांग सकते थे. उस फार्मर की, उस इंसान की फेथ कितनी स्ट्रांग होगी जिसने डायरेक्टली गॉड से बात करना स्टार्ट किया. कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन. So in order not to shake the writer's faith in God, who is the writer here? Writer of the letter is Lencho. The writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. Now what postmaster decided? He did not decide to leave away the letter. Even he decided to help that farmer लेंचो. पोस्टमास्टर डिसाइड करते हैं कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे, और वो हेल्प इसलिए करना चाहते थे क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं करते तो शायद लेंचो का जो फेथ था गॉड में वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता, वो भगवान में आगे विश्वास नहीं कर पाता. सो नॉट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू राइट अ लेटर अगेन एंड टू हेल्प हिम. तो पोस्टमास्टर उसको लेटर लिखने का और उसको हेल्प करने का डिसाइड करते हैं. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब पोस्टमास्टर उस लेटर को ओपन करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, तो वो देखते हैं कि उन्हें केवल अच्छाई के अलावा गुडविल इज़ अ गुड ट्रेट, सम गुड थिंग दैट यू डू एज एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. जो आप एक इंसानियत के नाते कोई काम करते हैं उसे गुडविल कहते हैं, राइट. तो उस लेटर में केवल इंसानियत नहीं चाहिए थी, उसमें इंसानियत से ज़्यादा कुछ चाहिए था. वॉट दैट लेटर नीडेड सम मॉनेटरी हेल्प. उस लेटर को कुछ मॉनेटरी हेल्प चाहिए थी. उस ऑथर को, उस राइटर को जिसने उस लेटर को लिखा था, उसे केवल गुडविल नहीं चाहिए था, उसे पैसा चाहिए था एज अ हेल्प. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मतलब वॉट यू डिसाइड, वंस डिसाइड. ओके, जो आप एक बार सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, डिटरमाइन हो जाते हैं जिस चीज़ को लेकर आप, राइट, उसे रेजोल्यूशन कहते हैं. तो पोस्टमास्टर तो ऑलरेडी काफ़ी रेजोल्यूट था, डिटरमाइन था, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हेल्प करेगा, तो वो अपने डिसीजन से हटता नहीं है. एंड ही स्टिल हैड हिज डिसीजन दैट ही वुड हेल्प हिम. अभी भी वो अपने डिसीजन के साथ ही रहता है. वो सोच लेता है कि अब चाहे पैसे देने हो या जो करना हो, लेकिन वो लेंचो की हेल्प करेगा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. सो व्हाट पोस्टमास्टर डिड? He started collecting money. He gave away some part of his salary. He asked his employees, he asked his acquaintance for some money so that they could collect the demanded amount as an act of charity. तो वो अपने सब लोगों से और अपनी सैलरी को मिलाकर वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता है जो उस लेटर में मांगा गया था, 100 pesos. It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. Here little more than half means about 70 pesos. Okay, more than half means more than 50 pesos, that is 70 pesos. तो आप little more than half की जगह 70 pesos भी लिख सकते हैं. Okay. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो पोस्टमास्टर ने बहुत एफर्ट डाले और उसके एफर्ट से वो 100 पेसोस तो कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मोर देन हाफ यानी 70 पेसोस वो कलेक्ट कर पाया. उसने एक लेटर जिसके ऊपर गॉड सिग्नेचर किया उसने, और 70 पेसोस उसने उस एनवलप में रख दिए. वाई डिड ही साइन दैट लेटर गॉड? सो दैट लेंचो कुड नॉट नो दैट सम ह्यूमन
सम पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वुड हेल्प हिम, ताकि लेंचो को ये ना लगे कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसकी हेल्प करी है, बल्कि उसको यही लगे कि भगवान ने ही उसकी हेल्प की है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment means satisfaction, of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले संडे लेंचो को देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, कितना फेथ है. वो अगले संडे पहुंच गया, उसको पता था भगवान उसकी हेल्प करेंगे. और जैसे ही वो वहाँ पोस्ट ऑफिस पहुँचा, वही पोस्टमैन जिसने उसका लेटर रिसीव किया था, उसने उसको वही लेटर वापस दिया जो कि पोस्ट मास्टर ने पैसों के साथ उसके लिए रखा हुआ था. सो फाइनली लेंचो रिसीव्ड दैट लेटर विथ सम मनी ऑल्सो, बट नॉट दैट अमाउंट वॉट ही आस्क्ड फ्रॉम गॉड. लेकिन वो पैसे नहीं थे जो उसने मांगे थे, 100 पैसों, उससे थोड़े कम थे. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अब लेंचो को जैसे ही वो लेटर मिला, उसको बिल्कुल शॉक नहीं हुआ, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंट था, बहुत कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे. ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. बट ही बिकेम एंग्री when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब पोस्टमास्टर तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेंचो खुश होगा कि उसको हेल्प मिल गई, लेकिन उसके कंट्रारी क्या होता है, उसके अपोजिट क्या होता है. लेंचो गॉट वेरी एंग्री फॉर नॉट गेटिंग दैट अमाउंट व्हाट ही एक्सपेक्टेड एंड डिमांडेड फ्रॉम गॉड. लेंचो इवन बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको वो 100 पैसोज नहीं मिलते हैं, उससे कम मिलते हैं. और उसको बड़ा गुस्सा आने लगता है कि भगवान उसको कैसे मना कर सकते हैं, भगवान उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं जो उसने डिमांड किया था उसके लिए. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had. Wrinkling on his brow is a gesture of being angry. Okay, तो लेंचो बड़े गुस्से के साथ एक और पेपर उठाता है वहाँ से डेस्क पे से, और फिर से लेटर लिखने लगता है. Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. बड़े गुस्से में वो उस लेटर को लिखता है, काउंटर पे जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है, उस लेटर पे चिपकाता है और वापस से उसको पोस्ट कर देता है, बड़े गुस्से के साथ. बहुत गुस्से में था वो. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही वो लेटर मेल होता है, पोस्टमास्टर फिर से उस लेटर को रिसीव करते हैं, फटाक से खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या था. क्या लेटर में कुछ कंटेनमेंट था, सेटिस्फैक्शन था, या गुस्सा था. इट्स सेड, क्या लिखा था लेटर में, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Look at the anger Lencho had for not getting 100 pesos. वो कहता है, भगवान आपसे मैंने 100 pesos मांगे थे, मुझे सिर्फ 70 pesos रिसीव हुए हैं. Send me the rest. मुझे आप जल्दी से फटाफट वो जो बचे हुए पैसे हैं 30 pesos वो भेजिए. Since I need it very much, मुझे बहुत ज़रूरत है. Look at the faith a man had in God. देखा आपने कितना तगड़ा फेथ था लेंचो को गॉड में. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. यहाँ से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, सब की मेहनत बेकार हो जाती है. लेंचो ने लेटर में क्या लिख दिया, उसने लास्ट में लिखा कि जो आप पैसे हैं, रेस्ट ऑफ द मनी हैं, वो आप डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस वालों के पास मत भेजिएगा, मेल मत करिएगा, क्योंकि ये बंच ऑफ क्रुक हैं. क्रुक्स कौन होते हैं? जो डिसऑनेस्ट होते हैं, चीटर्स होते हैं, डिसीव करते हैं, है ना. तो उन्होंने बेचारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो कि बहुत काइंड थे, जनरस थे, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी उन्होंने लेंचो की हेल्प की. बल्कि लेंचो ने उनके एक्ट को, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उन्होंने उसकी हेल्प की, उसको तो लग रहा था गॉड ने की है, तो उन्होंने तो अच्छे के लिए किया, लेकिन लेंचो ने उनको गलत समझ लिया और उनको चीटर्स कहा, उन्हें डिसऑनेस्ट कहा. सो इट हैपेंस समटाइम्स दैट वी डू गुड बट वी डू नॉट गेट गुड, राइट. तो आज का टाइम भी ऐसा ही है. आज का टाइम यही डिमांड करता है दैट इफ़ यू डू गुड, डोंट एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम अदर्स. ओके, सो दिस इज़ व्हाट एन ह्यूमन एक्ट. सो इन दिस स्टोरी व्हाट वी हैव read about somebody's faith in God, and that faith is very strong, very very strong, having a very good confidence over God. लेकिन ज़्यादा फेथ होना कभी कभी गलत भी हो जाता है.
लेकिन हाँ, हमें फेथ होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और जब भी हम एज अ ह्यूमन कोई भी एक्ट करते हैं, चैरिटी करते हैं या कोई भी काइंड एक्ट करते हैं, सर्व करते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि हमें उसके बदले में कुछ अच्छा मिलेगा। आई होप स्टूडेंट्स you like the explanation. For further explanation of the chapters, for further chapters, kindly follow my channel. Thank you. Have a nice time.